Hello friends, today in this lecture I will discuss with the different modes of the battery. The first mode of the battery sorry is the discharging mode of the battery, and the second mode of the battery is the charging mode of the battery. Okay, now first we will discuss the discharging mode of the battery. Now friends, as I had discussed in the last lecture with you about the discharging of the battery, that is, when the current is drawn from the battery, then the battery is said to be in the discharging mode. Got it? Clear? Now I have written the discharging mode, the definition of the discharging mode of the battery on the whiteboard. Discharging mode of the battery is said to be in the discharging mode if the current is drawn from the battery. You friends note it down. Yes, sir, it's done. Now, then comes the circuit diagram. The circuit diagram. Okay. Now, let us suppose say it is the ideal voltmeter. बेटा आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? आइडियल वोल्टमीटर वो वाला वोल्टमीटर है जो सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा. पहली बात. दूसरी बात, दिस आइडियल वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. Whenever the voltmeter is connected between any 2 points, say A and B, then the reading in the voltmeter, it will be the potential difference between the points A and B. Got it? समझ आ गई बात? ओके. अब बड़े ध्यान से देखिए. Let us suppose say this R is the external resistance. It is the point A, it is the point B. The voltmeter is connected between the points A and B across the external resistance. Now suppose this external resistance is supplied with a battery. I am saying that the battery whose EMF is capital E, the EMF of the battery is capital E. It is connected with this external resistance through the key K. Okay? Now since in this case, when no plug is inserted in this key K, then the circuit is the open circuit and no current will flow through the circuit. Okay? Now as soon as I am just inserting the plug in this key K, then the circuit is said to be the closed circuit. Okay? We had inserted the plug in the key K. The circuit is the closed circuit. When the circuit is closed, then let us suppose say I is the current which is drawn from the battery. I is the current drawn from the battery. Clear? So friends, I am just explaining the circuit diagram. Write down the words on your register. I am dictating it. Note down. Suppose the battery with the EMF capital E and internal resistance small r is connected across the external circuit whose resistances are through the key K, full stop. The ideal voltmeter is connected across
the external circuit between the points A and B. Full stop. The reading in the voltmeter is the potential difference between the points A and B. Full stop. Now in the next line, when the plug is inserted in the key K, suppose the current I flows through the circuit. Full stop. In the next line, as the current flows in the circuit and the current is drawn from the battery, that is, the battery is in the discharging mode. बेटा ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करिए. द करंट लीव्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी एंड रिटर्न्स बैक to its negative pole through the external circuit. ब्रैकेट को क्लोज करें. तो ये जो ब्रैकेट में डाला है, ये डिस्चार्जिंग मोड में करंट कैसे फ्लो करता है उसकी बात हुई है. बात समझ आ गई? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुने. अब स्टूडेंट्स, बेटा करंट का जो सोर्स है वो है ईएमएफ ऑफ द बैटरी. ईएमएफ ऑफ द बैटरी की वजह से सर्किट के अंदर करंट है. अब ध्यान से देखिए, सर्किट के अंदर आपको दो रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रही हैं. एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. समझ आ गई बात? अब बेटा देखिए, जब आप इस सर्किट के अलोंग मूव करते हैं तो करंट फ्लो के लिए सिर्फ एक ही पाथ है. तो इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, बेटा ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है. ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं. और रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में होते हैं तो स्टूडेंट्स हर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है. क्लियर? अब ध्यान से समझिए मेरी बात को. ना नेक्स्ट लाइन में लिखें, यूजिंग ओम्स लॉ फॉर द सर्किट E is equals to, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये सर्किट कॉपी हो गया. अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, सर्किट को मॉडिफाई कर रहा हूं. बेटा ये रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर मार्क कर लिया. और जो वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर एक्सटर्नल रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्टेड था. ठीक है, ये थे बैटरी के पोल्स. बेटा बैटरी के पोल से हमने यहां पे करंट आई निकाला था. ये करंट आई सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा था. क्लियर? बेटा यहां पर करंट आई है, यहां पर करंट आई है. समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था. तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट विल बी I into R. So this E it will be equals to I into R. ओके, अब ध्यान से देखिए, आगे करंट जाता है. आगे मार्क कर लेते हैं. लेट अस सपोज से कोई ये एक पॉइंट है, सपोज से C. तो B और C के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है. रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल r, तो B और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दैट इज I into स्मॉल r. समझ आ गई बात? So friends, thus E, that is the applied potential difference, it should be equals to I into capital R plus I into small r. Capital R, the value of the resistance of the external circuit, small r, the internal resistance of the battery. यहां तक बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन कैसे आई ये आपको समझाने के लिए मैंने सर्किट का रेफरेंस लिया. ये सर्किट हमारे कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है. ओके, अब ध्यान से सुनिए. अब जो वोल्टमीटर लगा हुआ था, वोल्टमीटर लगा हुआ था,
external resistance capital R के cross. Okay, now let us suppose say that V be the reading in the volt meter. V be the reading in the volt meter. सिंपल सी बात समझ आ गई. ओके, अब ध्यान से देखिए, ये वोल्ट मीटर था, यहां पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर था, V को हमने बोल दिया रीडिंग इन द वोल्ट मीटर. यहां पर बैटरी लगाई थी जिसका EMF E था और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r था. इस वाले पॉइंट को A बोला था, इसको B बोला था. सर्किट के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है. क्लियर? तो क्लोज सर्किट है, इसलिए मैंने यहां पर की मार्क नहीं की है. अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पॉइंट A दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट को मैं M मार्क कर रहा हूं. ये वाला पॉइंट B दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट को हमने N मार्क कर दिया. अब ध्यान से देखिए बेटा, पॉइंट A और पॉइंट M दोनों वायर से कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया. पॉइंट B और पॉइंट N वायर से कनेक्टेड है, दोनों का पोटेंशियल फिर सेम हो गया. अब ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझना. लेट V बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर. ओके, VA, चलिए इसको VA नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं VM is equals to VA. VM equals to VA, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट M, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A, दोनों का सेम है. VN is equals to VB, पोटेंशियल N पॉइंट और B पॉइंट का सेम है क्योंकि वायर से कनेक्टेड है. सो दिस VM माइनस से VN इट शुड बी इक्वल्स टू VA माइनस से VB. बात समझ आ गई? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिए, VM माइनस VN को की बात कर रहे हैं, VM माइनस VN की बात कर रहे हैं. तो VM माइनस VN, VM माइनस VM, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N. अब ध्यान से देखिए, M और N के बीच में आपको क्या कनेक्टेड दिखाई दे रहा है? M और N के बीच में आपको बैटरी कनेक्टेड दिखाई दे रहा है. पोल्स नहीं, बैटरी कनेक्टेड दिखाई दे रहा है. जब बैटरी की बात बोलते हैं तो पोल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आ जाते हैं. समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? अब यहां से देखिए, तो स्विच जो रीडिंग वोल्ट मीटर में है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B. ओके, अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो VM माइनस VN क्या हो गया? VM माइनस VN हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. क्या हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. क्यों? क्योंकि बेटा बैटरी के अंदर से करंट I फ्लो कर रहा है, बैटरी के अंदर से करंट I फ्लो कर रहा है. बात समझ आ गई? देखिए, पॉजिटिव पोल से निकला, एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए वापस नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी में आ रहा है. समझ आ गई बात? तो यहां पर बोलेंगे कि बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है. ओके, क्लियर? तो VM माइनस VN, व्हाट इज इट? इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. समझ आइए बात? ओके, और VA माइनस VB ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो गया? ये हो गया I इंटू R. VA माइनस VB अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हो गया I इंटू R. ये बात समझ आ गई? कॉपी करें. ये V बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर के बाद इसको कॉपी करें. डन हो गया? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, VM माइनस से VN इज इक्वल्स टू VA माइनस से VB इज इक्वल्स टू से V. V वाज अ रीडिंग इन द वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर कहां पर कनेक्टेड दिखाई दे रहा है? A और B के बीच में. तो यहां से क्या आ गया? यहां से हमें मिल गया VM माइनस VN का तो वैल्यू डाल रहे हैं हम V, और VA माइनस VB का वैल्यू लगा रहे हैं I इंटू R. समझ आ गई बात? तो बेटा V रीडिंग इन द वोल्ट मीटर है, तो V को क्या बोला हमने? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. ध्यान से देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. क्लियर?
I into R, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B। तो याद रखें ये जो मैंने लिखा है ये ओम्स लॉ नहीं है, यहां पर मैं ओम्स लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक स्किल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो डेफिनेशन वाइज समझा दिया था क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके इक्वल भी होता है। समझ आ गई बात? तो यहां पर मैं वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ ओम्स लॉ समझाने की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको यहां पर दिखाई है और उसके बाद मैं यहां तक आया हूं, तो यहां पर एक स्किल तक पहुंचे हैं हम। तो हैश डाल के वो स्किल लिखें, हैश डालिए, वो स्किल लिखिए। फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट when the battery is in the discharging mode, then the terminal potential difference of the battery is also equal to the potential difference across the resistance of the external circuit। बात समझ आ गई? तो हमने यहां पे V को क्या बोला है? हमने यहां पर V को बोला है V is the terminal potential difference of battery। V is the terminal potential difference of battery। हो गया? कॉपी करिए। पहले यहां तक कॉपी करना था, फिर उसके बाद यहां से कॉपी करना था, यहां तक लास्ट तक, उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, यहां से कॉपी करना है। दिस E इज इक्वल्स टू, बेटा इस वाली इक्वेशन को बॉक्स में डाल लेना, V प्लस I इंटू स्मॉल r। E इक्वल्स टू V प्लस I इंटू स्मॉल r। इस इक्वेशन को तो फर्स्ट बोल देना और इस इक्वेशन को सेकंड बोल देना। तो बेटा हैश दिलवा के जो स्किल लिखवाई है ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट स्किल है। तो जो स्किलफुल न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस स्किल को यूज करके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, द इक्वेशन सेकेंड इज द इक्वेशन for the potential difference of the battery in the discharging mode। फुल स्टॉप, खत्म। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुने। तो सिर्फ डिस्चार्जिंग मोड में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पोटेंशियल डिफरेंसेस, पहला ईएमएफ ऑफ द बैटरी और दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो E को हमने EMF बोला है, V को हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी बोला है। क्लियर? तो इस इक्वेशन में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि EMF ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। EMF ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब बड़ी प्रैक्टिकली बात समझना। मान लेते हैं कि EMF बैटरी का था 5 वोल्ट। ठीक है, बैटरी की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस थी, तो बैटरी को जब हमने सर्किट के साथ कनेक्ट किया तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा, थ्रू द बैटरी भी करेगा। तो बेटा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के अक्रॉस। इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होगा वो ईएमएफ होगा। पल्ले पड़ गई बात? ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी कितना हो जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी वो हो जाएगा जो एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आई बात? अब ध्यान से देखना,
Thus E minus V is written as I into R. तो बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या पता लगता है? इक्वेशन नंबर थर्ड को ध्यान से देखें, ईएमएफ में से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? आई इंटू स्मॉल आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आया। समझ आई बात? नेक्स्ट लाइन में लिखें, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर लें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर थर्ड वी कंक्लूड दैट in the discharging mode of the battery, नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट करके लिखना, नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट करके लिखो, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सोर्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सेकंड करके लिखो, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन the terminal potential difference of the battery। थर्ड करके लिखो, the difference between the EMF and the terminal potential difference of the battery is always equal to the potential drop। पोटेंशियल ड्रॉप बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, एक ही बात होती है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो बेटा बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आएगा जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करे, तो ये वाला जो वैल्यू है इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। सिंपल सी बात समझ आ गई? अब ये जो हैशेस में लिखवाया है ना, यहां से आपके इंपॉर्टेंट 1 मार्कर के आंसर्स आ गए सारे, इसमें सारी की सारी स्किल्स आ गई, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम जो लगेंगी, पल्ले पड़ गई बात। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, मैं आपके साथ हूं। कॉपी हो गया? चलिए अब बात करेंगे चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी की। अभी तो डिस्चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी हो गया, चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, मोबाइल का एग्जांपल। बेटा जब मोबाइल स्विच ऑन स्टेट में है तो मोबाइल की जो बैटरी है वो करंट सप्लाई कर रही थी, मोबाइल हो गया ऑफ, यूज करते रहे, वीडियो देखते रहे, बैटरी एग्जॉस्ट होती गई, अरे कुछ टाइम के बाद तो बैटरी बोलेंगे कि यह डिस्चार्ज हो चुकी है, तो मोबाइल ऑफ स्टेट में आ गया। अब क्या किया? बैटरी को चार्ज करना था, कैसे किया? बैटरी चार्जर लिया, इलेक्ट्रिसिटी मेंस के साथ कनेक्ट किया, यूएसबी से मोबाइल के साथ कनेक्शंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी मेंस का स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करने के बाद अब मोबाइल की बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ टाइम तक लगा रहने देते हैं, बैटरी 100% हो जाती है, बैटरी चार्जर हटा लेते हैं, काम खत्म हो जाता है, बैटरी चार्ज हो गई। तो अब यार इस चार्जिंग में क्या हुआ था? वो जो चार्जर है और जो यूएसबी केबल है और जो वो इलेक्ट्रिसिटी के मेंस थे, अब की बारी बेटा वो जो इलेक्ट्रिसिटी के मेंस हैं जहां पर वो चार्जर के आपने 2 पिन यूज किए हैं, ठीक है, जो 2 पिन आपने सॉकेट में लगाए थे, उन 2 सॉकेट्स, उन 2 पिन्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब क्या रही? वो सोर्स ऑफ करंट होगा विच विल फ्लो थ्रू द बैटरी। बात समझ आ गई? तो इस सर्किट डायग्राम को देखना। तो अब बात करेंगे चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी की। चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी। अब ध्यान से सुने, बैटरी चार्जिंग मोड में कब होती है? बेटा बैटरी चार्जिंग मोड में तब होती है जब बैटरी करंट ले, मतलब द करंट इज सप्लाइड टू द बैटरी। पहले वाले में क्या था? करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब क्या नहीं, करंट इज सप्लाइड टू द बैटरी। ठीक है, सो द बैटरी is said to be in the charging mode when the current is supplied to the battery। ठीक है, समझ आ गई बात?
और बेटा चार्जिंग मोड में करंट कैसे फ्लो करेगा? अब की बारी करंट बैटरी के पॉजिटिव पोल में जाएगा और नेगेटिव पोल से बाहर आएगा। क्लियर? द करंट एंटर्स इन द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी and leaves the negative pole. The current enters in the positive pole of the battery and leaves the negative pole. Okay? Through the internal रेजिस्टेंस। ये बात समझ आ गई? तो चार्जिंग मोड में करंट फ्लो की डायरेक्शन से पता लगेगा। कोई भी सर्किट होता है जहां बैटरी होती है, सर्किट क्लोज होता है, तो बेटा बैटरी चार्जिंग मोड में कब है और डिस्चार्जिंग मोड में कब है ये पहचानना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इनकी पहचान बता दी है मैंने। पहले वाले में तो ब्रैकेट में लिखवाया था डिस्चार्जिंग मोड के बाद, अभी मैंने आपको सीधा दे दिया। समझ आई बात? तो चार्जिंग मोड में बैटरी कब होती है? चार्जिंग मोड में बैटरी तब मानी जाती है जब करंट बैटरी के पॉजिटिव पोल में एंटर करे और नेगेटिव पोल से बाहर आए। चार्जिंग मोड। ठीक है? अब सर्किट डायग्राम ध्यान से देखें, कॉपी करें, पहले इसको मिटाना है मुझे। कॉपी करिए। सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज से E be the EMF of the battery, the potential difference between the poles of the battery, the internal resistance of the battery suppose से small r। तो जी ये है हमारी बैटरी। यहां पर एक आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हमने बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। समझ आ गई ये बात? तो बेटा आइडियल वोल्ट मीटर कहां पर कनेक्टेड है? आइडियल वोल्ट मीटर इज सेड टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। अक्रॉस द बैटरी का मतलब पॉजिटिव पोल पॉइंट A के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव पोल पॉइंट B के साथ कनेक्टेड है। समझ आ गई बात? ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए। Let us suppose it is the point say N. Let us suppose it is the point say N. ठीक है? अब बेटा पॉइंट M और पॉइंट N के बीच में लगाते हैं बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर। क्लियर? बैटरी चार्जर जब लगाया तो अभी बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रिसिटी मेंस में बैटरी चार्जर लगाया था। तो बेटा बैटरी चार्जर के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सोर्स ऑफ करंट होगा। मान लेते हैं बेटा बैटरी चार्जर का ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव टर्मिनल था। क्लियर? तो करंट किसने सप्लाई किया? मोबाइल की बैटरी कैसे चार्ज हुई थी? किसकी वजह से चार्ज हुई थी? बैटरी चार्जर की वजह से चार्ज हुई थी। तो मतलब बैटरी चार्जर ने करंट सप्लाई किया था। तो I is the current flowing through the battery। पल्ले पड़ गई बात? सर्किट डायग्राम कॉपी करिए जल्दी से। हो गया सर्किट डायग्राम कॉपी हो गया। दोबारा से इंपॉर्टेंट बातें पहले एडवांस में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। वोल्ट मीटर कहां पे कनेक्टेड है? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द पॉइंट्स A एंड B। और A और B के बीच में क्या कनेक्टेड है? A और B के बीच में कनेक्टेड है बैटरी, और बैटरी के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो बेटा जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करे तो बैटरी के पोल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता बैटरी कहते हैं। तो फिर से वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग होगा दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल और डिफरेंस ऑफ द बैटरी। समझ आ गई ये बात? मतलब A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो रीडिंग इन द वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए।
पॉइंट ए और पॉइंट एम सेम पोटेंशियल पे हो गए, पॉइंट बी और पॉइंट एन सेम पोटेंशियल पर हो गए, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस एम और एन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर की रीडिंग, तो एम और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर की रीडिंग। समझ आ गई बात? क्लियर? तो यहां पर सिर्फ एम और एन को अगर देखें, ऊपर वाले को भूल जाएं, सिर्फ एम और एन को देखें, तो एम और एन के बीच में क्या कनेक्टेड है? बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? तो अभी डिस्कशन में क्या किया कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज द सोर्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, चलिए पहले आपने सर्किट डायग्राम कॉपी कर लिया, अब सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिखें। नाउ सपोज the battery charger is connected across the battery, and the ideal voltmeter is also connected across the battery, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, the reading in the voltmeter is the terminal potential difference of the battery। full stop डालिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, terminal potential difference of the battery is the source of current flowing through the battery। बात समझ आ गई? ओके, अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट लाइन में लिख लें आप, लेट वी बी द रीडिंग इन द वोल्टमीटर, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो अब ध्यान से सुनिए बेटा, ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी, एम और एन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी वी, और वी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिर्फ ए और बी को देखिए, तो ए और बी के बीच में अब आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, पहला तो दिखाई दे रहे हैं पोल्स ऑफ द बैटरी, दूसरा दिखाई दे रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो सिंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या किसके इक्वल होगा? नेक्स्ट लाइन में लिखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, thus V is equals to E plus IR। V is equals to E plus IR। बेटा पॉइंट ए से लेके सिर्फ पोल्स को क्रॉस करिए, पोटेंशियल डिफरेंस है E, फिर नेगेटिव पोल के आगे से B तक पहुंचिए तो करंट को फ्लो कर रहा है, स्मॉल r के क्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप आएगा दैट इज I इंटू स्मॉल r। समझ आ गई ये बात? क्लियर हो गई बात? तो यहां पर फिर से Vm is equals to Va, Vn is equals to Vb। क्यों? ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे क्यों है? क्योंकि वायर से कनेक्टेड है। ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे क्यों है? क्योंकि वायर से कनेक्टेड है। तो मतलब Vm माइनस से Vn is equals to Va माइनस से Vb। हो गया? अब A और B को देखिए, A और B के बीच में वोल्टमीटर लगा हुआ है, तो जो रीडिंग इन द वोल्टमीटर है वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दैट इज इट इज इक्वल्स टू V। ये सिंपल सी बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, हो गया? तो हैश डाल के लिखें, या फिर एक काम करिए, हैश मत डालिए, कुछ मत लिखिए, क्योंकि डिस्कशंस हो चुकी हैं, लिखवा चुका हूं सारी चीजें, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। इस इक्वेशन को फर्स्ट करें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, द इक्वेशन फर्स्ट इज द इक्वेशन for the potential difference of the battery in the charging mode। ओके, अब ध्यान से देखिए,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रिड्यूस कर लेते हैं। दस v माइनस ई इज रिटन एज i इंटू आर, जैसा कि हमने पहले देखा था, लास्ट केस में देखा था। वहां पर e माइनस वी इक्वल टू आई आर था, यहां पर v माइनस ई इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो वो जो बातें वहां पर थी वो यहां पे भी होल्ड करेंगी, बस एक बात का फर्क होगा। वो जो फर्क होगा वो ये होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर ईएमएफ से ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर ईएमएफ से ज्यादा होगा। ठीक है, तभी बैटरी चार्ज होगी। क्लियर हो गई बात? मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं कोई एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट और बैटरी चार्जर भी 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो इसके इसमें बेटा बैटरी चार्जर बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अरे वो भी तो बैटरी चार्जर को सप्लाई करना था। अब बैटरी चार्जर ने सप्लाई किया 5 वोल्ट, जो ईएमएफ था वो था 5 वोल्ट, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आना है वो तो भी सप्लाई नहीं हुआ है। तो हमेशा याद रखें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से अगर ज्यादा है तो बैटरी चार्ज होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, हैश डाल के लिखिए, हैश डाल के लिखिए। एक काम करिए, इस इक्वेशन को बोलिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर ले। नेक्स्ट लाइन में लिखें, फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वी कंक्लूड दैट the terminal potential difference of the battery is greater than the EMF of the battery. नेक्स्ट लाइन में सेकंड करके लिखें, ये फर्स्ट पॉइंट था। The terminal potential difference, if less than or equal to the EMF of the battery, then the charging process of the battery is not completed. That is, for charging of the battery, the terminal potential difference of the battery should be greater than the EMF of the battery. थर्ड पॉइंट करके लिखें, whenever the battery is in the charging mode, the terminal potential difference of the battery is the source of current flowing through the battery. ओके, कॉपी करें बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है। हो गया? अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, वो कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, बढ़िया वाला। इसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तो उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनना। ये जो इलस्ट्रेशन है ये चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड को पूरा क्लियर कर देगा। मतलब आज के लेक्चर में हमने जो किया है उसको नट शेल में डाल देगा। समझ आ गई बात? तो ध्यान से देखना, ये एक डिस्कशन है, ठीक है? मान लेते हैं, लेट अस सपोज से ये कोई एक बैटरी है और यहां पर इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज से R1, जो ईएमएफ है दैट इज सपोज से E1, और E1 का वैल्यू मैं डाल रहा हूं 20 वोल्ट, R1 का वैल्यू मैं डाल रहा हूं यहां पे 0.1 ओम। समझ आ गई बात? तो ये है हमारी बैटरी। अब बेटा इस बैटरी को हम एक दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। बैटरी, दूसरे वाली बैटरी का ये है V2। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट अस सपोज इट इज 5 वोल्ट,
इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज से दैट इज R2 एंड लेट अस से 0.2 ओम। इस पॉइंट को हमने A बोल दिया, इसको हमने B बोल दिया, इस पॉइंट को हमने M बोल दिया और इस पॉइंट को हमने N बोल दिया। बात समझ आ गई? तो सबसे पहली बात, बड़े ध्यान से सुनना, ये डिस्कशन पल्ले पड़ गई, सारे न्यूमेरिकल्स करने का दम आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात सोचो, क्या सर्किट क्लोज्ड है? हाँ जी, ये सर्किट क्लोज है क्योंकि ऊपर वाली जो बैटरी है, नीचे वाली जो बैटरी है, वायर से आपस में हमने कनेक्ट करा दी है। तो जब सर्किट क्लोज होता है, पहली बात समझ आ गई, सर्किट क्लोज है। दूसरी बात, करंट कैसे फ्लो करेगा? ध्यान से देखो बेटा, किस बैटरी का ईएमएफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? ऊपर वाली बैटरी का ईएमएफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, नीचे वाली बैटरी का ईएमएफ आपको कम दिखाई दे रहा है। तो करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की रीजन में, या करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ आ गई बात? तो यहां पे करंट कैसे फ्लो कराएंगे आप? करंट फ्लो आपने कराना है। तो बेटा करंट निकलेगा बैटरी के, ऊपर वाली बैटरी के पॉजिटिव पोल से वायर में जाएगा, नीचे वाली बैटरी के पॉजिटिव पोल में करंट आएगा, इसके नेगेटिव पोल से निकलेगा, जाएगा ऊपर वाली बैटरी के अंदर पहुंच जाएगा। तो हमने यहां पे करंट फ्लो का जो पाथ है, करंट फ्लो हमने कंप्लीट करा दिया। दूसरी बात क्लियर हो गई, करंट फ्लो क्लियर हो गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब बेटा ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है और कौन सी डिस्चार्ज हो रही है? अब ये पहचान है, ये स्किल्स जो मैंने आपको दी थी। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली बैटरी को देखो, ऊपर वाली बैटरी को देखो, ऊपर वाली बैटरी के पॉजिटिव पोल में से करंट को निकाला गया और इसके नेगेटिव पोल में यहां से करंट को डाला गया। क्लियर हो गई बात? तो ये वाली जो बैटरी है, ये वाली बैटरी हो गई डिस्चार्जिंग मोड में, ये वाली बैटरी हो गई डिस्चार्जिंग मोड में। किसमें हो गई? डिस्चार्जिंग मोड में। क्लियर? अब क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, ठीक है, ओके। और चलिए पहले दूसरी बैटरी की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये करंट आए, ए से एम की तरफ आया, फिर एम से हमने डाला बैटरी के पॉजिटिव पोल में, बैटरी के पॉजिटिव पोल में करंट डाल के बैटरी के नेगेटिव पोल से करंट को बाहर निकाल दिया। तो यहां पर बैटरी के पॉजिटिव पोल में करंट जा रहा है और नेगेटिव पोल से बाहर निकल रहा है। तो ये वाली जो बैटरी है, ये आ गई चार्जिंग मोड में। ये कैसे आ गई? चार्जिंग मोड में। समझ आ गई बात? ओके। तो ये वाली जो बैटरी है, ये है चार्जिंग मोड में। तो डिस्चार्जिंग मोड क्या होता है, चार्जिंग मोड क्या होता है, समझ आ गया मेरे ख्याल से इस सर्किट डायग्राम से। क्लियर हो गई ये बात? अब इसके बाद ध्यान से सुनो, पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यूजुअली कैलकुलेट कराया जाता है। तो सिर्फ पॉइंट ए को देखो और बी को देखो, और ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है उसको देखो। पॉइंट ए को देख लिया, पॉइंट बी को देख लिया, पॉइंट ए और बी के बीच में जो कनेक्टेड है वो है बैटरी। क्लियर हो गई बात? बैटरी के अलावा कुछ नहीं है। आपको स्किल दी थी मैंने, मैंने स्किल दी थी, वहां पे तो बेटा ये डब्बे बने नहीं आएंगे, क्या आएंगे? सपोज आएंगे और साथ में रेजिस्टेंस आएगी। तो आपको मैंने स्किल दी थी कि बेटा बैटरी के नेगेटिव पोल या पॉजिटिव पोल के साथ जो भी रेजिस्टेंस है, आप उसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो और डब्बे में डाल दो, तो इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो अब आप क्या कह रहे हैं? ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है। ये मत बोलो कि पोल्स कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, या एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक ईएमएफ कनेक्टेड है। ये सारी बकवास है, ऐसे मत बोलना, सीधा बोलो बैटरी कनेक्टेड है। अब सर्किट कंप्लीट है और बैटरी के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो बेटा ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वाली बैटरी के क्रॉस। क्लियर हो गई बात? मैं यहां पे लिख देता हूं, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, ए टू बी। तो पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पे हो गया, पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पर हो गया,
तो VA माइनस VB को क्या बोलेंगे? व्हाट इज इट? इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी हैविंग द EMF E1. समझ आ गई ये बात? वो इतना काम क्लियर हो गया? ओके, अब ध्यान से देखिए. M और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे पहले तो बोलेंगे क्या? तो जब M और N की बात हो रही है तो सिर्फ M और N को देखो और उनके बीच में जो कनेक्टेड है उसको देखो. M और N के बीच में क्या कनेक्टेड दिखाई दे रहा है आपको? M और N के बीच में आपको बैटरी दिखाई दे रही है जिसका EF E2 है. अब इस वाली बैटरी के अंदर से भी करंट फ्लो कर रहा है, तो M और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द बैटरी ऑफ EMF E2. मतलब इस वाली बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाली बैटरी के क्रॉस जो होगा दैट विल बी VM माइनस VN. सो VM माइनस VN इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी having the EMF E2. समझ आई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? तो बेटा बैटरी के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे कुछ ऐसे कार्यक्रम के बारे में सोचना है जो जो डिस्कशंस की हैं मैंने. ठीक है, मैंने इसीलिए पहला दूसरा तीसरा करके बोल दिया था. ठीक है, इसको कॉपी करें जल्दी से. डन. तो आज सिर्फ इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरीज. याद रखिए जो इलस्ट्रेशन मैंने लिया है ना, ये सिर्फ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को समझाने के लिए लिया है. बेसिकली तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज है. अभी हमने कॉम्बिनेशन किया नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, सो आज बस इतना.